السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیتھ چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل پی ڈی پی طرف آج سری نگرس مز پریس کانفرنس سانس کرنے آمت یتھ دوران پارٹی صدر محبوبہ مفتی عمر سرکارس منگ کر شہر خاص باپت گژھِ الگ بجٹ تھونہٕ یُن یُتھ زن اتہ روزن والن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنس مز آسانی سپدِ ییٚلہِ زن تمو سرکارس منگ کر شہر سرینگر ویڈنگ ڈیسٹنیشن بناونس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہٕ ین یُتھ زن مقامی نوجوانن آن ژور زیننس مز مدد میلہِ اس لیے میں گزارش ونکن کس سرکارس خاص کر چیف منسٹر صبس ونکس بجٹ ڈسکس جمس مز کہ سری نگر شہر خاص کے خاطر یہ الگ بجٹ تھو تاکہ یم زن شہر سری نگرس مز مشکلات پرابلمز کنجشن مکانس أکس مز ژور ژور پانچ پانچ فیملیز روزان ڈرینیج پرابلم لینز ڈرینز پرابلم جو ہمارے ہیریٹیج مکان ہیریٹیج بلڈنگس ہیں وہ دن بہ دن ختم گسان اگر اک سیپریٹ بجٹ یہ شہر خاص خاطر تھونہ امچ ڈیولپمنٹ خاطر تھونہ مے باسان تم سۭتۍ گژھِ شہر خاصس مز واریاہ ترقی وۄنۍ سمارٹ سٹی نے مطلب لینے کے بجائے دینے پڑ رہے ہیں تُہۍ وٕچھو کہ یہ سڑک برونٛٹھ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ آو فٹ پاتھ بناونہٕ ییٚمہِ سۭتۍ زن ٹریفک کنجشن واریاہ زیادٕ گژھان مشکلات گژھان مے باسان سرکارس پزِ ریوزٹ کرن سمارٹ سٹی سو دیٹ لوگوں کو جو ہے آسانی کی وجہ جو دقتیں ہو رہی ہیں جو باٹل نیکس ہے ان کو کلیئر کرنا چاہیے تریم تہ پتہ کہ شہری سری نگر ٹورزم سی حدس تان کی دکاندار یہ ہاؤس بوٹ یہ لکن گرن مز گیسٹ ہاؤس مگر یہ ٹوریزم چلے ان چلان اگر ٹوریزم جب بیٹھ جاتا ہے ان کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے اور پہلگام کی وجہ سے کافی اس پہ اثر ہوا دکانداروں کی دکانوں میں جو مال تھا وہ بک نہیں سکا ہاؤس بوٹ والوں کا بڑا نقصان ہو گیا ٹوریزم سے ریلیٹڈ چاہے تم سومو ولس گاڑی ولس ہوٹل ولس واریاہ نقصان گو تو میری گزارش ہے سرکار سے کہ اخ کریو تُہۍ یُس زن کشیر ہسان وار وار ویڈنگ ڈیسٹنیشن برونٹ تہ آسان وۄنۍ ہیژان بیٚیہِ گژھُن تتھ منٛز چھِ شہری سری نگرس منٛز پہلگام گلمرگ سونمرگ باقی تو ہیں ہی وہ جگہیں جو ویڈنگ ڈیسٹنیشن بن سکتی ہے مگر جو سری نگر یت مز اسہ نگین کلب یت مز چار چناری یت مز اسہ پری محل اگر یہ جائیں اپ گریڈ کرنے یمن فیسلٹیز تھونا اگر چار چناری تھی گئی وہاں ٹوائلٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں اگر ان کو ویڈنگ ڈیسٹنیشن ہم نے بنانا ہے کہ ساری ملک مز گھ لک ان خاندر کرنے خاطر پتہ گھ سہ تم کریں نگین کلبس مز چار چناری مز یا جو پری محل جیسی جگہوں پہ ام برائے تہ جائے ات پہ سرکارس خاص دھیان دن تاکہ یم ہیکن ات لائق گھت کہ باہر سے ٹورسٹ آئے اور اپنی شادیاں ان جگہوں پہ کرے اور یہاں ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ جموں کشمیر اسمبلی ہند اجلاس یہ جمس مز جاری تتہ آز تمہ سات سپیکرن کینس وقتس ایوانچ کاروٲیی ملتوی کرمژ ییٚلہِ ایوانس مز حزب اختلاف تو حزب اقتدار ممبرو طرف نعربازی کرنے آئی حزب اختلاف یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو ممبرو طرف یہ غیر ضروری معاملہ وتلوت کاروٲیی مز خلل تراونچ کوشش کرنے آئی تتہ حزب اقتدار طرف منظم وت رٹت ضروری سوالن ہند جواب دنچ کوشش کرنے یُتھ زن ممبر طرف پنن علاقن ہند مسلہ وتلوت سرکارس تام آسانی سان تم واتنٲیِتھ ہیکن گھرکلی معاملن ہندس مرکزی وزیر امت شاہ سن جموں کشیر ہند دور نظر تل تھوت یہ جموں کشیر میں سکیورٹی سخت کرنے آمز تتہ آز شہر سری نگر کن مختلف علاقن مز فورسز اہلکاروں طرف ہاؤس بوٹن ہز تلاشی ہینہ آمز یل زن ہاؤس بوٹ مالکن ون آمت تم گھن ین والن پژھن ہز شناخت پانس نش موجود تھون یُتھ زن ضرورت پینہ وز تم آسانی سان پیش کرت ہیکن
कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है श्रीनगर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बोर्ड्स में भी चेकिंग जो है वो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हो रहा है अमान के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सिक्योरिटी के हवाले से। इसके लिए जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। हाउस बोट्स के अंदर जो है ये लोग जा रहे हैं और उसके बाद चेकिंग वहाँ पर हो रही है ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि अमित शाह का जो विजिट है उसके लिए भी सिक्योरिटी को जो है मजबूत बनाने के लिए चेकिंग हो रही है। अमान बरकरार रहे इसलिए ये सिक्योरिटी चेक जो है यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अमन अमान चेक करने के लिए हाउस बोट्स, चाहे वो हाउस बोट्स हो या फिर बाकी चीजें हो, उनको चेकिंग किया जा रहा है ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए। श्रीनगर के अंदर जैसे ही अमित शाह जब विजिट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है बाकी सारी चीजें देखे जा रहे हैं और अमन अमान जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ये चेकिंग हो रही है। और उसके बाद चाहे वो हम हाउस बोट्स की बात करें या फिर जगह जगह पर जो है ये चेकिंग हो रही है। अगर हम देखते हैं लेडी सीआरपीएफ जो है वो भी, लेडी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है ये चेकिंग हो रही है ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो आगे आने वाले दिनों के लिए ना हो। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए बैनात कबट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। कांग्रेस पार्टी हिंद यूटी सदर तारिक हमीद करान अमित शाह संदिस दौरस हवाले कत करान वोनमुत दौर मुकम्मल सपदन पत वन अमित शाह जम्मू कश्मीर मज हालात बेहतर तो लूक सुकून सान जिंदगी गुजारन। यल जन तारिक हमीद करान वोन जमीनी सूरत हाल मरकजी सरकार कन दावान बरक्स युस जन चोर थावन के हालात ठीक नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही हैं, वो हालात नहीं है। आवाम को भी बेखबर रखा गया है, शायद आप लोगों को भी बेखबर, आप लोग भी हैं इससे बेखबर कि पिछले 2-3 महीने से जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 7-8 ज़िले ऐसे हैं जहां पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं। 12-12 दिन के एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अनकंट्रोलेबल तरीके से इस वक्त सिचुएशन है। तो शायद ये उसी का यहाँ पे खुलासा करने आए हो और वापस जाके एज़ यूजुअल यही बात होगी कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल और हालात सुधर चुके हैं, यही उनका होगा। तो हमें कोई ज़्यादा मेंबर असम्बली हवेली एजाज अहमद जानन सुनील शर्मा संदिस दिनामतिस बयानस पे अफसोस इजहार करान वोनमुत सुनील शर्मा पज खत पीर पंजाल के लूकन माफी हन तिकाज यमो लूको तरफ प्रेथ विज मुल्क बापत पन माल तो जू छेप दितमुत। आपने कल एक अल्फाज मीडिया में जो अल्फाज कहे कि वो खिताए पीर पंजाल को नहीं जानते और उन्हें ये कहा खिताए पीर पंजाल की कोई पहचान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ खिताए पीर पंजाल की पहचान पूरे देश में, और देश के अंदर जब भी कभी पाकिस्तान या दुश्मन की किसी भी ताकत ने हमला किया उस वक्त खिताए पीर पंजाल के लोग खड़े हुए। मैं एलओपी साहब से पूछना चाहता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों ने शहादतें दी, हमारी फौज ने शहादत दी, कौन था जो पाकिस्तान के साथ लड़ने में अपनी सेना के साथ खड़े रहे? वो खिताए पीर पंजाल के लोग रहे। खिताए पीर पंजाल के लोग जो आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, मिलिटेंसी से हर जगह अपना लोहा मनवाते हैं और अपने मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं। और आज इनको दुख शायद हो रहा है कि खिताए पीर पंजाल के लोग, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए जो है एलओपी साहब ने ये बात कह दी कि वो जानते नहीं है। खिताए पीर पंजाल को ज़रूरत नहीं है एलओपी साहब की कि वो क्या कहें, लेकिन उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली जेडबल तनवीर साइदकन मुख्तलिफ रियासतन में कशरन लूकन सत पेश आमतन वाक़ान हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार पज तमाम रियासतन हवाले एडवाइजरी जारी करें युत जन कशरन लूकन हज हिफाजत यमन इलाकन मज यकीनी बनाने यी बात है तो एक अच्छी खुशाइन कदम है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं आपकी वसादत से अपील करूंगा कि गृह मंत्री जी ने जो हमसे वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के अप्रोप्रिएट टाइम है, वो अप्रोप्रिएट टाइम मुझे अब लगता है आ गया है और स्टेटहुड देने का वक्त आ गया है। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनका इजाला करने के लिए मुझे लगता है स्टेटहुड वापस रेस्टोर होना चाहिए। उसके साथ साथ
क्योंकि बहुत सारे हमले हो रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों पे। अब ये एक नया फैशन बन गया है। मुझे लगता है अब गृह मंत्री जी को एक सीरियसनेस इसमें लेके जितने भी रियासतें हैं इस मुल्क की और यूटीज़, उसमें एक एडवाइजरी जानी चाहिए कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं जिनके ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है वो मुझे लगता है बंद होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां चेक की जा रही हैं बंगाल पुलिस की तरफ से, किस तरीके से? देखिए, मैंने अभी देखा नहीं, आपकी वसादत से सुन रहा हूँ, तो अभी जब देखेंगे इसको पूरा पता करेंगे क्या हुआ, इसके पीछे क्या क्या बात है, उसके बाद हम उसको जानेंगे। जिस तरह से दावा किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमने हालात बहुत बेहतर किए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आवाम का एतमाद बहाल करने में भी वो नाकाम? अगर हालात ठीक हो गई हैं तो मीरवाइज साहब को क्यों बंद किया जाता है जुमा की नमाज के लिए, ये मुझे पता है। क्यों बार बार हमें 13 जुलाई पे क्यों हमें रुकाया गया, हमें क्यों नहीं उस दिन करनी थी? अगर हालात ठीक हो गई तो फिर हालात सबके लिए ठीक हो गई, फिर मुझे लगता है स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। फिर ये अगर या दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, या तो हालात ठीक है या तो हालात ख़राब है। अगर हालात ठीक है तो वो चीज़ जो उसकी बेनिफिट। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ये जम्मस मज एहतजाजी धरनस पे तक आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इन लूकन हज खबर अतर हेचम जन तमो वोन जिस्मानी तौर खास लूकन हंद जायज़ मुतालबा पूरे करनस हवाले पज सरकार संजीद सपदुन युत जन यमन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। यल जन तमो वोन योदवे यमन लूकन सत विज विज वादे करना आय, ताहम आज ताम अमली जाम लागनस हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत यम सत यम लूक मोयूस सपदमेत। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो साथी जो दोस्त हमारे यहाँ बैठे, आपने खुद कहा और ये कहा जाता है कि ये स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, मौजूर हैं, और ये ऐसा हिस्सा है हमारे समाज का जो जायज़ मांग है इनकी कि मावनत हो, वो इनका हक बन जाता है। और अगर सरकार समाज इस कम्युनिटी के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में हमदर्दाना रवैया ना अपनाए, कोशिश न कर लें, मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी होगी। मैं एक लेजिस्लेटर की हैसियत से यहाँ आया हूँ, इनका दुख जानता हूँ, इनकी तकलीफ़ जानता हूँ, और अभी 2016 में पूरे मुल्क में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जद्दोजहद की, लड़ाई की, एक एक्ट बना। हत्ता कि उस एक्ट में आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में 2016 में लागू हुआ, वो उससे पहले बना था पूरे मुल्क में। ये इनकी मांग है, उसको इस एक्ट को पूरे तौर पर यहाँ लागू किया जाए। पेंशन स्कीम के दायरे के अंदर यानी पेंशन की मराहत मिलनी चाहिए। जो वेजेस नहीं बल्कि जो इंसेंटिव मिल रहा है वो तो न होने के बराबर है। और आजकल के महंगाई के ज़माने में चंद सौ मिले और फिर उस पर वो तकिया कर ले, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, कैसे होगा? तो इस वजह से इनकी मांग ये रही है कि उसमें भी इजाफा होना चाहिए। अभी एक हमारा स्पोर्ट्स का लड़का है, उसके मेडल्स देख लीजिए कितने हैं। वो चाहता है मुझे मावनत हो खेल कूद के लिए, मुझे कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से हौसला अफजाई हो। और अगर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई न करें, हम मांग न करें, हम इनकी आवाज़ असम्बली में ना उठाए, मेरे ख्याल में हम अपने मर्तब का लिहाज नहीं रखते, पासदारी नहीं रखते। मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ आया कोई ये नहीं क्या कोई इनकी खातिर ही, बल्कि इनके दुख दर्द को बांटने के लिए आया हूँ। और ये वचनबंद हैं हम सब लेजिस्लेचर को होना चाहिए कि हम ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों के हक में ज़ोरदार आवाज़ बुलंद करें। और सरकार को भी चाहिए कि ये बड़े लोग नहीं हैं, ये बड़े लोग भी हूँ लेकिन मौजूर हैं, और अगर हम इनकी मावनत न कर ले, इसमें भी लातुलाल कर ले, बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। कला केंद्र जम्मू मज देही तरक्की महकम तरफ सारस मलुक साइंस करना आमुत यथ मज वजीर मौसूफ जावेद अहमद डार तो वजारत के दोमो जिम्मेदारों तो लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये कई स्टाल लागन आमुत यमन हुंद वजीर मौसूफन जायज़ हेत तत तमो वोनमुत यन मालन हंदिस साइंस करन मकसद जि प्रेथ शोबस सत तोलुक थवन वलिस शख्सस यी ब्रो पकनुक मौके फराहम करने। सर सीधा कीजिए, उल्टा है ये। आज एक लॉन्च किया है, ब्रांड की बनाते हैं। इस ब्रांड से सर हमने
इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कैलेंडर हमने लॉन्च किया है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। तो सम्मानित करते हुए मैं भी एक बार जोरदार तालियां। शर्मा, देखिए, आपको ये जानकर बड़ी खुशी हुई है, आपके सामने सारी चीजें हैं। ये एग्जीबिशन जो होते हैं, ये हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो हमारी महिलाएं होती हैं, खासकर रूरल एरियाज की, जिनको एक उम्मीद होती है ऐसे एग्जीबिशन से, जो अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। और आज पहली बार हमने जो बाहर के स्टेट्स जिन्होंने अपने यहाँ आर्टिकल्स को लाया है और उनको दिखाया यहाँ पर, और उनकी काफ़ी हद तक उनकी सेल भी हो रही है। ये एक ओवरऑल जो है डिपार्टमेंट जो हमारा काम कर रहा है, NRLM जो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट के लिए बाकी सोर्सेज भी अवेलेबल करवाती है, जैसे बैंक लिंकेज होते हैं या बाकी मौके हम उनको देते हैं। दिल्ली में जहाँ जहाँ भी हमारा एग्जीबिशन होता है, वहाँ पर उनको हम बेचते हैं। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो ये काम करते हैं, उनको हम मौका फराहम भी करते हैं। तो ये कैलेंडर हमने लॉन्च किया है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मरकजी रेलवे वजारत तरफ ये अनंतनाग पहलगाम शुपियां पुलवोम रेलवे लाइन बिछावनुक मनसूब फिलहाल मुलतवी कोर तच जिले शुपियनस मज मुकामी लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत सही कदम यम सत मुकामी लूकन सठई राहत वोत। यल जन तमो वोन जे रेलवे लाइन बिछावनुक मामले ब्रोकुन यन सत मुकामी लूक तो खासकर जमींदार तो बागवाल सठई आवलनस मज हन आमद, तो मरकजी सरकार तरफ तुलन आमुत यह कदम तिहद बापत सठई राहत वोल। तपाव चतज मरकजी रेलवे वजारत तरफ मनसूब तैयार करना आमुत, यथ दौरान वन आमुत अनंतनाग पे पहलगाम पुलवाम पे शुपियन रेलवे लाइन बिछावनस हवाले मरकजी सरकार तरफ सर्वे करना आमुत, यम पत यमन इलाकन मज रोजन वालन बाग वालन तो जमींदारन मज सठई तशवीश वुचन। तो नई दिल्ली अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी रेलवे वजारत वजीरन कह दो ब्रो अमि कथ हुंद इशारा दितमुत जम्मू कश्मीर सरकार तो मेम्बरान पार्लियामेंटो तरफ लूकन हिंद खदशात तिमन ताम वातनमित, यम पत वजारत तरफ यह फैसला निना आव फिलहाल इन प्रोजेक्टन पे मजीद कम ब्रो पकन। मेरा नाम सादिका फारूक हूँ, मैं कोसू से रहने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये रेल अब कैंसिल हुई, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और क्योंकि अगर ये रेल कैंसिल ना होती तो हम डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे सारे सपने टूट जाते। जब मुझे पता चला कि ये रेल कैंसिल हुए तो मुझे फिर और उम्मीद हुई कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकती हूँ। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए सब लोग, और मैंने बाबा से कहा है कि यहाँ पे सारे पेड़ कट जाते, 7.5 लाख पेड़ कट जाते यहाँ पे एयर पोल्यूशन हो जाता, हम फ्रूट्स नहीं कर। जब हमारे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत थी रेल की, जब हमारे पास फिर गाड़ी के पेट्रोल के पैसे नहीं थे, हम फिर रेल पे क्या चढ़ सकते। साहब जिसने भी ये किया है, चाहे वो एक्स MLA हो या एक्स MLA है, जो भी हमारे रहनुमा है, जिसने ये हमारी खबर वहाँ तक पहुँचाई है जहाँ से कल ये अनाउंस हुआ है, तो हम उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। क्योंकि उसने हमारे एक नई ज़िंदगी दी है, एक नई किरण, एक नई रोशनी की किरण हमें कल नज़र आई है। तो हम उनसे मोदिवाना यही गुजारिश करें, अगर अभी ये पेंडिंग है तो उसको डिस्काउंट कीजिए आप। तो कितना कि हमारे जो इसमें बाल बच्चे, हम जो हर कोई काम हम इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। हमारे पास क्या अलावा कोई ज़रिया नहीं है। मेरे पास कम से कम 10 कनाल ज़मीन है, 10 के 10 इसमें जाते हैं। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी इसमें ज़्यादा है, और हर चीज़ हर एंगल से इसमें डिमेरिट नज़र आता है। किसी जगह से किसी जो भी यहाँ पे आया है, MLA आया है, एक्स MLA आया है, जिसने भी यहाँ पे देखा है, उसने हर एक ने यही कहा कि इसमें कहीं से कोई मेरे नज़र नहीं आ रहे। सर मुझे लगता है कि अभी रमज़ान आने वाला है, इसके बाद ईद है, तो मैंने ऐसा फील किया कि रमज़ान से पहले हमने ईद देखी है। सर कल रेलवे मिनिस्टर की जानिब से एक अनाउंसमेंट जो है जारी किया है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को जो है हाल्ट पे रखा जाए। जो ही ये अनाउंसमेंट यहाँ के लोगों ने से यहाँ के ग्रोवर ने सुना, तो उनके पास जो है
खुशी की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये ट्रेंस का एरिया है और मेन एरिया जो है यहीं पे जो है शोपियान का पाया जाता है और यहाँ पे ये लोग जो है आपस में गले रख रहे और यहाँ पे ये जो है मिठाइयाँ बांट रहे कि अभी जो है इस रेल प्रोजेक्ट के ना होने से जो है काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को। इनका साफ कहना था कि अगर यहाँ पे रेलवे जो है निकल जाती और हमें काफ़ी सारा नुकसान होगा इस फ्रूट सन्नत को। गुलिस्तान के लिए मैं शाहिद शाद। रामबनस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई तब एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत जी तुम पुरमन पट मनरेगा स्कीम हवाले जिला तरक्याती कमिश्नरस यादाश्त पेश करने बाबत द्राई ताहम पुलिस तरफ तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिन आमुत युस जन सठे अफसोसनाक। देखो मजिस्ट्रेट साहब आज ये जो एमजी नरेगा बचाओ संग्राम के तहत यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट था, उसको जो है यहाँ पे ये रोक रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें ऊपर जाने नहीं देती है, ये बहुत ज्यादा जुल्म है। गरीब लोगों के लिए हम आवाज उठाना चाहते हैं। जो एमजी नरेगा इन्होंने खत्म किया है, जो कानून था, जो लोगों को राइट था, लेकिन उसको बीजेपी सरकार ने खत्म किया और वहाँ पे जो वीबी जी राम जी इन्होंने लाया है, एक इन्होंने अपना वो शातिर दिमाग चला के हिंदू मुस्लिम फसाद कराने के लिए, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे नहीं मेंशन करता है। इनको हर जगह पे राम रहीम वगैरह जो है बीच में लाते हैं ये, तो हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। राम सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। अब ये जो है बीजेपी सरकार इस वक्त जो है हमें यहाँ पे रोक रही है, पुलिस को आगे कर रही है, हमें डीसी ऑफिस तक भी नहीं जाने देते। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या, ये जुल्म नहीं तो और क्या, ये गरीबों के साथ जुल्म है, ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। हमें डीसी ऑफिस तक जाने देना चाहिए। हमें डीसी साहब को वहाँ पे जो है मेमोरेंडम देना है, उसको हम मेमोरेंडम भी देंगे। वहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और जो है गरीबों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार जो है इस वक्त यहाँ क्या बोलते हैं, भाजपा सरकार, वो गरीबों से भी डर रही है और कांग्रेस पार्टी से भी डर रही है कि कहीं ये लोगों तक ये बात न। जम्मू कश्मीर में ये नारवारिदतन दौरान रिहायशी ढांचे खाकिस्तर सपदन सिलसिले बदस्तूर जारी तज आज शहर श्रीनगर किस महजूर नगर पातशाही बाग इलाकस मज नारवारिदात पेश आमुत यथ दौरान 3 रिहायशी मकान नुकसान सपोद। ये फायर सर्विस अमल तो मुकामी लोगों तरफ बर वक्त कार्रवाई अमल मज अनित नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नारवारिदात दौरान रिहायशी मकान मज साज सामान नारबज सपदमुत, ये जन मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया भरपूर मदद करने अपील करना आई। जी आपका नाम बताएं। इम्तियाज़ खान मेरा नाम है। तो ये यहाँ पर ये आग की वारदात हुई और जिसमें एक गरीब फैमिली है, स्लम डिवेलपर्स रह रहे हैं यहाँ पर और इनको माली मदद की बहुत ज़रूरत है। दर्द का तबसरा तो बहुत करते हैं मगर इनको महसूस करना है, मदद करनी है, इनको फिर से स्टैंड करना है। ये मजदूर है, छाबड़ी फरोश है या कोई संग तराश है, वही काम करते हैं और इनके मुझे नहीं लगता है ये सरवाइव कर पाएंगे। और एक मजदूर 80 साल का बंदा है जो इस रहायशी में रह रहा है और दूसरा यहाँ टीन शेड में अपनी जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारा, सब्जी बेच रहे थे। अब इनको माली मदद करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो सरकार का किरदाराना रोल है वो कर सकते हैं और ख़ासकर इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछली बार CDF में एंटाइटल हुआ है तो बहुत मदद कर सकते हैं कंसर्न MLA, क्योंकि CDF में एंटाइटल हुआ। आग पहले नहीं होती थी, आग के वारदात अगर होते थे तो ऐसे नहीं होते थे, तो कुछ पैसा उनको नहीं मिलता था। अब CDF में अब वो आराम से एंटाइटल है, दे सकते हैं। हम गुजारिश करते हैं कंसर्न MLA जो है उनसे गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, इमीडिएटली इनको मदद करिए। और एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा मदद करती रहती है ऑन टोज। हम देखते हैं अभी मुझे लगता है पटवारी भी आता है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने काम किया, इन टाइम पर कंट्रोल हुआ है, वरना ये छोटे छोटे आशियाना बहुत नज़दीक आपने देखा होगा विजुअल्स। अब इतना है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कि जो हमारे कंसर्न MLA उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती। मोहम्मद यूसुफ वो मकसद गो गिरास नार 2 बजे तो ये दुकान लोग तो अत पे योर अत रूद कहीं दुकान लैपटॉप सोरे सामान सोरे
تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ پانہٕ وجوہات کیا ہو کس پر لوگ بناؤ دُکانَس لوٚگ أنٛدٕرۍ نار پَے کیٛاہ چھِ شاٹ گوٚو اَتھ شاٹ کیٛاہ کٔژِ بجہِ لوگ یہ نار لگ بگ 2-2:30 بجے 2:30 بجے نہ 2 بجے سُیَت 2:30 بجے اچھا وۄنۍ کیٛاہ نۄقصان گوٚو سورُے حظ سورُے سورُے تمام چیٖز اَسہِ دُکان اوس اَتھ منٛز اوس سامان موبایل سامان اوس لیپٹاپ اوس سورُے سورُے تُہۍ دِیِو نظر یپٲرۍ تُہۍ وٕچھِو یور آیا پتہٕ فایر اینڈ ایمرجنسی نہ اہن حظ تِم آیہِ تِم آیہِ تِم آیہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ یور آوا کانٛہہ ایڈمنسٹریشن نہ وٕنہِ آو نہٕ کٕہٕنۍ نہ نہ تۄہہِ سۭتۍ چھُو آسان شاید اچانک یپٲرۍ کیٛاہ تار کیٛاہ گوٚو تہٕ مگر اَتھ چھِ اچانک 2:30 بجہِ وٲجَن تہٕ بہٕ اوسُس ہُتَتھ مےٚ چھِ دَنٛدَن بٮ۪مار تہٕ سُہ اوس تَتھ ووٚن مےٚ یہِ ہسا نار پٮ۪ٹھ پَتہٕ کوٚرُم کھۄڈِ کٮ۪تھ یہِ کیٛاہ جناب چھِ دَپان اَتھ کھۄر تہِ کھۄرنَن اورٕے سورُے مۄکلیو اَتہِ کوٗتاہ نۄقصان تَتھ واریاہ جاداد تہِ ترٛام تہِ پَلو تہِ سورُے کینٛہہ سورُے جاداد دوٚدُم سورُے کینٛہہ دوٚدُم رۄپیَس 2 لَچھ ٲسِم تِم دٔدِم ماجہِ ٲسۍ بۄن لاکرَس منٛز پونٛسہٕ تِم دٔدۍ سورُے کینٛہہ خٲلی درٛاے یِم زَچے یَژ اَسہِ بَس سورُے دُکانَس منٛز ٲسۍ أمِس نِکِس یِم لیپٹاپ سورُے کینٛہہ یِم آدھار کارڈٕچ فوٹو سِٹیٹ سُہ تہِ دوٚد سورُے کینٛہہ دوٚد مِشیٖن وِشیٖن سورُے کینٛہہ دوٚد یہِ لوٚگ ییٚمِس دُکاندارَس نار یِہوٚے نار آو اَسہِ پَتہٕ چھِنہٕ أسۍ تو ناظرین اتھ ووت کٲشر خبرنامہ تُہۍ روٗزِو گُلِستان نِوٕز وٕچھان مےٚ دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ